Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will resume our topic of philosophy and education as peer exams are going on. So if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe it so that you can get the notification of the upcoming videos or the video when uploaded. And like share ज़रूर कर दिया कीजिए और आप ये कमेंट ज़रूर बहुत मोटिवेशन वाले होते हैं तो प्लीज़ करते रहा कीजिए। अब आज हम डिस्कस करेंगे philosophy of education. Okay, what is philosophic and education, and what is the relationship between the philosophy and education? So philosophy and education. Education without philosophy is blind and philosophy without education is invalid. देखिए फिलोसॉफी और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फिलोसॉफी क्या होती है और एजुकेशन क्या होती है। देखिए अगर मैं कंक्लूजन की फॉर्म में या समरी की फॉर्म में बताऊँ तो फिलोसॉफी होती है कुछ वैल्यूज़, कुछ रूल्स जिसको कि हम अपनी लाइफ में हम अपनी लाइफ को हम देखते हैं। ठीक है, हमारा व्यू पॉइंट, हर पर्सन का अपना व्यू पॉइंट होता है, वो किसी ना किसी फिलोसॉफी को, किसी ना किसी थ्योरी को फॉलो करता है। एजुकेशन होता है हमारी नॉलेज। ठीक है, हम नॉलेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, नॉट नॉलेज ओनली, टू यूज़ द नॉलेज। ओके, so what is philosophy in detail? Now we will discuss. The term has been derived from the two Greek words philos and sophia. So philos means love and sophia means wisdom. So philosophy is love for wisdom. ठीक है, love for knowledge. So meaning of philosophy is love of knowledge and activity and comprehensive picture of the universe, a guide to a way of life, and philosophy and science. There is no need to explain these points, as if you want you can explain as it defines the meaning of philosophy. Definitions of philosophy. According to John Dewey, whenever philosophy has been taken seriously, it has always been assumed that it is signified achieving as wisdom that would influence the conduct of life. So here you have written the name of John Dewey, so you have to write this definition as it is. You can't add any of the word, any of the line from your side. But you can do one thing. Firstly, write down the definition of philosophy according to John Dewey, and then after explain its meaning by writing meaning of philosophy. Okay, and then add on. Then it will enhance your paper's visibility to the examiner. Next is meaning of philosophy. According to Socrates, it begins with wonder, but in modern times it begins with doubt. देखिए जब भी किसी पर्सन को कोई डाउट होता है तो वो क्या करता है, उसके रिगार्डिंग सर्च स्टार्ट करता है। तो फिलोसफी क्या कहती है कि आप जब किसी चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो, डेप्थ में जानना चाहते हो, मीन्स यू आर शोइंग योर लव फॉर नॉलेज, राइट? So philosophy is a comprehensive system of ideas about human nature and the nature of the reality we live in. आप जिस रियल लाइफ वर्ल्ड में रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, आप बहुत सी चीज़ों को फेस करते हो, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, बट हर पर्सन को डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सिमिलरली अगर किसी पर्सन को, दो पर्सन को सेम प्रॉब्लम आती है, इवन देन दे आर हैविंग द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू रिजॉल्व दैट। लेकिन ये डिफरेंट फिलोसफीज को यूज़ करते हैं। ओके, सो फिलोसफी इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। इन फैक्ट इट इज एट द रूट ऑफ द knowledge. Education has also drawn its material from different philosophical point of basis. About philosophy, अगर हम फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, अब फिलोसफी पता चल गया क्या होता है। फिलोसफी होता है कि लव ऑफ नॉलेज। जब आप कोई चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, दैट वी कॉल द फिलोसफी। सो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी लाइक एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सेट्रा. This I have added this slide only to get you know about philosophy. There is no use of philosophy's this slide in this session. Okay, but if you want to work on that, you can add on. आप अगर एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स के बारे में ऐड करना चाहते हैं, इन डिफरेंट फील्ड्स के बारे में ऐड करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में, देन यू कैन ऐड, इट इज योर विश. सो देयर आर डिफरेंट फील्ड ऑफ फिलोसफी एज एजुकेशन फिलोसफी, सोशल फिलोसफी, इकोनॉमिक फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, एक्सेट्रा. There are different philosophical approaches such as pragmatism, materialism, political, etc. ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिलोसफी के पॉइंट्स ही आ जाते हैं. आई हैव जस्ट एडेड टू सो दैट यू कैन नो दैट. नाउ व्हाट इज़ एजुकेशन. देखिए एजुकेशन के बारे में आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो. इन लिटरल सेंस एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, एडुकेयर एंड एडुसियर. सो एडुकेयर का मीन क्या होता है? टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेस. ठीक है, एंड एडुसियर मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ, टू ड्रॉ आउट, टू लेट आउट, कि आपने कंक्लूजन क्या निकाला अपनी नॉलेज को यूज़ करके. सो एडुकेटर मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग. दिस इज ओनली फॉर द एडुकेटर्स.
सो मीनिंग क्या हुआ एजुकेशन का कि एजुकेशन एज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, आप कोई भी नॉलेज को गेन करते हो फिर उसको यूज करते हो. ओके, अ टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट, अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, डायरेक्शन, ग्रोथ and transmission of culture. So in these, education is required. What does it mean education is required? The knowledge is required. How you are getting the knowledge and then using it to solve your daily life problems, to solve to grow in the life, to get the right direction for achievement of your goal. Okay. सो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी क्या होता है? वैल्यूज, लव फॉर विजडम. एजुकेशन क्या होता है? नॉलेज को यूज करना. ठीक है, पहले आपको नॉलेज गेन करने के लिए एक अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा, दैट कम्स इन फिलोसॉफी, और फिर उस नॉलेज को गेन करने के बाद उसको यूज करना पड़ेगा, दैट इज एजुकेशन. अब फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन क्या होती है? फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ टू द वर्क ऑफ द एजुकेशन. मीन्स आप अपने जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उसको आप कैसे यूज करते हो, किस वे से यूज करते हो. Philosophy of education offers a definite set of principles and establish a definite set of aims and objectives. Philosophy of education, the interdependence. अब हम देखेंगे कि फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन आपको समझ में आ गया कि आपने जो भी, आपको पहले एक अपना एक कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, आपको एक अपना अपनी डिज़ायर दिखानी पड़ेगी कि आपको कोई नॉलेज चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि रेडीमेड हर जगह पे मिल जाएगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो नॉलेज गेन करने के बाद आप उसको अप्लाई करते हो. ठीक है, सो फिलोसॉफी और एजुकेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनकी डिपेंडेंसी क्या है? फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. It is the application of philosophy to study of the problems of education that is known as philosophy of education. जब आप एजुकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब आप फिलोसॉफी पर जाते हो, ढूंढते हो, नॉलेज लेते हो और फिर आके उसको एजुकेशन से अप्लाई करते हो. ठीक है, तो फिलोसॉफी आंसर्स ऑल द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन. फिलोसॉफी में आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर होगा, हर प्रॉब्लम की आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की क्षमता होती है. सो रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी और एजुकेशन के बीच में रिलेशन क्या है? इंटरडिपेंडेंसी आपको समझ में आ गया कि एजुकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी भी तरह की काम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिलोसॉफी की ओर जाते हो, पॉइंट्स ढूंढते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो. ठीक है, अब उनमें रिलेशन क्या है? डिपेंडेंसी तो शो हो गया कि अगर आपको अब अगर आप कुछ करोगे नहीं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं. प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप फिलोसॉफी पे जाओगे और फिर नॉलेज लेकर आप उसको सॉल्व करोगे थ्रू एजुकेशन. ठीक है, तो अब इनमें रिलेशनशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गुडे, थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज इनसफिशिएंट, प्रैक्टिस अनगाइडेड बाय थ्योरी इज एमलेस. ठीक है, अगर थ्योरी को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे अब नॉलेज के बेवहार पे, तो वो सफिशिएंट नहीं है. क्योंकि जब आप एक चीज़ की नॉलेज लेते हो और उसको अप्लाई करते हो तो आपको दो चीज़ें और पता चलती हैं. ठीक है, कि आप उस चीज़ को कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, किसी और प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और प्रैक्टिस अनगाइडेड बाय थ्योरी इज एमलेस. अगर आप प्रैक्टिस ही किए जा रहे हो, अगर मैं मैथ की बात कर लेती हूँ, आप मैथ के सम सॉल्व करते जा रहे हो, बट आपको बाद में पता चलता है वो चैप्टर तो आना ही नहीं था, तो क्या मतलब? यूज़ ही नहीं हुआ ना कोई उसका, वो एमलेस हो गया. आपने कर तो बहुत सारे सम दिए, बट वो एग्जाम में ही नहीं आने थे. आपने टॉपिक्स तो बहुत सारे पढ़ दिए बीएड के, लेकिन वो आपके सिलेबस में ही नहीं था. ठीक है, तो एमलेस थी ना वो, क्योंकि आपने प्रॉपर आपने थ्योरी ही नहीं पढ़ी है. ठीक है, so the purpose of studying philosophical perspective in education is to give aim to numerous of practices that are being proposed in our current era of educational reform. देखिए, जो फिलोसॉफी और एजुकेशन होते हैं ना, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल. ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर जो आपके फ्रंट पे होगा आप उसी को सबसे ज़्यादा उसी को फेस करते हो, सबसे ज़्यादा उसी को ही फेस करते हो. और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, दैट वॉज नॉट रॉन्ग, दैट वॉज गुड, दैट वॉज राइट, बोथ आर राइट, बट प्रियोरिटी इज विच इज एट द टॉप. जो फ्रंट पे होता है आप उसी के ऊपर फोकस करते हो. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफी, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वन व्यूज द वर्ल्ड. ठीक है, फिलोसॉफी का मतलब क्या है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हो, आप वर्ड को किस तरह से देखते हो. और एजुकेशन का मतलब होता है आप अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट कैसे करते हो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द culture. So this transmission and preservation happens informally in the society through schools, through homes, mosque, church, media,
गवर्नमेंट एंड पीयर्स एंड स्कूल ऑल्सो। ठीक है, आप यहीं पर ही इन चीज़ों को यूज़ करते हो ना, जहाँ पर भी आप सोसाइटी में जाते हो आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं और आप उनमें क्या करते हो, किसी का बिहेवियर जो होता है बहुत रूड होता है, किसी का बिहेवियर बहुत सॉफ्ट होता है, आप अकॉर्डिंगली उनसे बिहेव करते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप रूड के साथ और भी ज़्यादा रूड हो जाते हो, आप अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो कि किस तरह से जो कंपैटिबिलिटी बनी रहे दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, ये आप फिलोसॉफी से पढ़ते हो। ठीक है, फिलोसॉफी से आप नॉलेज गेन करते हो कि आपको किस तरह के बंदे के साथ में कैसे रिएक्ट करना है। सो रिलेशनशिप ही है, कंटिन्यू रहेगा। फिलोसॉफी डील्स विद थ्योरी ऑफ नॉलेज वेयर एज एजुकेशन डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ दैट नॉलेज। फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है, नॉलेज को गेन करना, और एजुकेशन का मतलब उसको अप्लाई करना, ट्रांसमिट करना। सो फिलोसॉफी इज अ गाइड टू एजुकेशनल practice. The educator is not able to seek proper answer without philosophers expert view। जब तक कि आपको पता नहीं होगा थ्योरी क्या है, उसको यूज़ कैसे कर सकते हो, या फिर वो किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जब तक आप उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं, नॉलेज गेन नहीं करोगे आप, तब तक उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो फिलोसॉफी एंड एजुकेशन बोथ डील्स विद वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू जेम्स रोज, he defined the relationship between philosophy and education by saying philosophy and education are like two sides of a coin that I told you. The former is the contemplative side while the later is the active side। ठीक है, एक बार वो फ्रंट पे होता है तो वो एक्टिव है, बाद में वो स्लीप मोड में चला जाता है, बट बोथ आर ट्रू। ठीक है, और सेकेंड थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे 2 राइटर्स के नाम लिए हैं, तो इट इज़ बेटर टू राइट द नेम्स, बट मेन थिंग इज द डेफिनेशन और द वर्ड्स शुड बी राइट अकॉर्डिंग टू द राइटर्स नेम। ऐसा नहीं है कि आपने जेम्स रोम्स का नाम लिख दो, डेफिनेशन किसी और की याद आ गई वो लिख दी। अगर नहीं पता है तो आप बाय सम राइटर हैज़ डिफाइंड रिलेशनशिप, आप ऐसे करके भी ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर राइटर का नाम लिखते हो तो आपको उसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। एग्जामिनर इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है। और दूसरा, राइटर्स के नेम लर्न करने का बेस्ट वे क्या है कि कोई ऐसे राइटर्स के नाम लर्न कर लीजिए जिनकी डेफिनेशन मोस्टली दी हुई होती है। ठीक है, कुछ ऐसे आपको कॉमन नेम मिल जाएंगे जिन्होंने हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी है, तो आप उन्हीं का नेम लर्न कर लो और उन्हीं की डेफिनेशंस को लर्न कर लो ताकि आपको ईजी रहे। It means that philosophy provides theoretical basis for education, so we can say that both are interdependent. Practice without theory is incomplete because it will be without guidance, and theory without practice is incomplete. Both need to complete for themselves. फंडामेंटल फिलोसॉफीज इन एजुकेशन, देखिए मैंने कुछ फंडामेंटल फिलोसॉफीज ली हैं जो एजुकेशन में यूज़ होती हैं, जैसे कि आइडियलिज्म माइंड के लिए, रियलिज्म फैक्ट के लिए, स्कॉलिस्टिज्म ट्रेडिशन के लिए, थॉमिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ फेथ एंड रीजन के लिए, प्रैग्मेटिज्म ग्रोथ इन एफिशिएंसी, एक्सटेंशियलिज्म इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, पोस्ट मॉडर्निज्म एंडिंग डोमिनेशन और कल्चरल एजर्शन, मीन्स मतलब जो भी कल्चर में चलता आ रहा है पुराने रीति रिवाजों को खत्म करके कुछ चेंजेस करना। एंड दीज आर फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन लाइक एसेंशियलिज्म लर्निंग द एसेंशियल लाइक द 3 R's। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए हम एसेंशियलिज्म की ओर जाते हैं। पर्नलिज्म के लिए यूटिलाइजिंग द ग्रेट बुक्स को रीड करना, उनको डिस्कशन करना। प्रोग्रेसिज्म मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, आप एक्टिविटी के बिहाफ पे बच्चों को सिखाते हो। एक्सिस्टेंशियलिज्म हैविंग इंडिविजुअल चॉइसेस, हर बच्चा डिफरेंट कुछ करियर स्कोप में जाना चाहता है, सबका अपना एम ऑब्जेक्टिव डिफरेंस होते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म, सबका बिहेवियर अलग होता है, कोई कैसे प्रॉब्लम को डील करता है, कोई कैसे करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग, कि किस तरह से आप एक प्रॉब्लम को बच्चों को देते हो और वो डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। एंड रिकंस्ट्रक्शन मीन्स हैविंग द डिफरेंट मूड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो दीज आर द सम फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें देखिए फिलोसॉफी को यूज़ किया गया है, थ्योरी को यूज़ किया गया है, बट काम क्या किया गया है डिफरेंट, जो कि हम सब जानते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यूटिलाइजिंग द ग्रेट बुक्स, बट वो किसी थ्योरी को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। एज अ कंक्लूजन I have added this slide so that all points of regarding the philosophy, education and their relationship should be clear. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपके कमेंट बहुत मोटिवेटिव होते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।